हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ रिएक्शंस। टाइप ऑफ रिएक्शंस में सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। बहुत ही इजी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। जब भी कभी दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट हो और वो कंबाइन होकर केमिकली एक प्रोडक्ट बनाए। When two or more than two reactants combine to form single product, this type of reactions are known as combination reaction. For example, magnesium ribbon burn in oxygen to form magnesium oxide. Two reactants are present, magnesium and oxygen. जब आप मैग्नीशियम को बर्न करते हो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड एक सिंगल प्रोडक्ट बना। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, टू रिएक्टेंट्स हैं, फॉर्म हुआ वाटर। तो व्हेन हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन वाटर इज फॉर्म। तो टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म सिंगल प्रोडक्ट। दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। सेकेंड टाइप के रिएक्शन है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस are the reactions in which a single reactant decompose to form two or more than two products. Chemical reactions in which a single reactant decompose to form two or more than two products. These type of reactions are known as decomposition reactions. The type of decomposition reactions are thermal means heat, photo means light, electro means electricity. Chemical reactions takes place in the presence of heat are known as thermal decomposition reaction. Decomposition reactions takes place in the presence of light are known as photo decomposition reactions, and electro decomposition reactions are takes place in the presence of electricity. So three types of decomposition reactions are present. One by one हम इनकी स्टडी अब करेंगे। Thermal decomposition reactions. Thermal means heat. तो chemical decomposition reactions takes place in the presence of heat are known as thermal decomposition reaction. When zinc carbonate is strongly heated, it forms zinc oxide and carbon dioxide. जब हम जिंक कार्बोनेट को स्ट्रांगली हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उससे दो प्रोडक्ट बन जाते हैं, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज बाय हीटिंग टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट। आप इसको लाइमस्टोन भी बोलते हो। लाइमस्टोन को जब हम स्ट्रांगली हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोडक्ट्स हो गए, सिंगल रिएक्टेंट। नेक्स्ट ferrous sulfate strongly heated to form iron oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So single reactant decompose to form 1, 2 and 3 products. Same lead nitrate is strongly heated to form lead oxide, oxide of nitrogen, nitrogen dioxide and oxygen. Simple, when single reactant decompose to form two or more product in the presence of heat are known as thermal decomposition reaction. Decomposition reaction का second type है photo decomposition reaction. Photo means light. Decomposition reactions takes place in the presence of light are known as photo decomposition reaction. फोटोग्राफी में हमेशा हम एक केमिकल यूज करते रहे हैं, दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड. Silver bromide when exposed to sunlight it converts into silver and bromine. सेम ही अगर हम एक चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड को रख देते हैं सनलाइट के अंदर ओपन करके तो सिल्वर और क्लोरीन दोनों सेपरेट हो जाते हैं. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. और आप हमेशा देखते हो ये चीज़ कि बहुत सारी हमारे पास मेडिसिन होती हैं जो सिरप के फॉर्म में होती हैं और इन मेडिसिन के सिरप की बॉटल्स को हम डार्क ब्राउन या बॉटल ग्रीन कलर का बनाते हैं और आप उस पर एक देखो कॉशन लिखा हुआ होता है कीप अवे फ्रॉम लाइट. तो जो केमिकल्स लाइट की वजह से केमिकल रिएक्शन कर लेंगे हम उनके लिए बॉटल्स के कलर को डार्क कर देते हैं. और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन भी आता रहता है कि आप मेडिसिन की बॉटल को डार्क कलर का क्यों बनाते हैं. तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन are the reactions takes place in the presence of light. थर्ड टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. So chemical reactions
takes place in the presence of electricity. Decomposition reactions takes place in the electricity are known as electrodecomposition reaction. Water is not a good conductor. पानी की कंडक्टिविटी नहीं होती है अगर वो डिस्टिल्ड है, उसमें कोई साल्ट नहीं है। पर अगर वाटर के अंदर हम कुछ साल्ट डिजोल्व कर दें या फिर उसमें डाइल्यूट HCl मिला देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। इस प्रोसेस को हम हाइड्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। तो वाटर के अंदर आपने कैथोड एनोड लगाकर एक सर्किट बना दिया और अब आप इसमें पानी लेकर उसमें थोड़ा सा एसिड मिला देंगे जिससे वाटर की कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाए। की को ऑन करेंगे आप तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना शुरू होगी तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज से अट्रैक्ट होगी यानी वो कैथोड पे रिलीज होगी, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज यानी नेगेटिवली चार्ज है तो ये एनोड पर जो पॉजिटिवली चार्ज है रिलीज होगा। ये जो रेशियो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वो 1:8 होता है। हमने ये 9th में पढ़ा है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो 1:8 का है। तो हम देखते हैं कि 1:8 के रेशियो में एनोड और कैथोड पर हमको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही गैसेस मिल जाती हैं। तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ वाटर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जब वाटर को फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से डिकम्पोजिशन हो जाता है वाटर का और वो उन कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है जिससे वो बना है, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस and the reactions takes place in the presence of heat, thermal decomposition reaction, in the presence of light, photo decomposition reaction, in the presence of electricity, electro decomposition reaction। बच्चों आज की क्लास में इतना ही। आशा है आपको ये दोनों टाइप के रिएक्शन समझ आए होंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन समझाऊंगी। होप आप लोग को ये चैप्टर समझ आ रहा होगा। आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपको जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।